Very good morning, guys. I welcome you all in official YouTube channel of Civil Engineering Gurukul. So this is lecture number 14 of connection. So moving forward, the series of numerical problems. In last two lecture, we have covered 2 to 3 numericals based on welded connections. So how could this lecture be beneficial for you? Some of the students ask me, sir, how this subject is important for preparation of competitive examination and how could it be beneficial for field. So I'd like to tell you students, a structure paper of all structure paper of engineering is very important while you preparing for competitive examination. Apart from competitive examination, if you all want to do job in private sectors, then these papers are very important for you. This paper help you to analyze the structure part, because without structure analysis you can't do analyze the structures. So these are the very important papers. Now I would like to share some of important structure paper. I think you have already study in last semesters in third or fourth semester, like I want to write the names of the paper, like MOS, mechanics of structure. I think you all are already studied in semester 4. So DSS, design of steel structure, that is also a structure paper. Next RCC design, next TOS. So these all papers are very important in engineering era, because if you want to analyze any type of structure like a beam, like a slab, like columns, then these papers are very important. Without these, engineering are nothing. I would like to tell you, without these paper, engineering are nothing. So if you want to make your career in the field of structural or structural engineer, then you have to prepare yourself and you have to analyze the structure. Suppose you have not a knowledge of MOS, then you never analyze the structure in fields. You never design the any type of beam, you never design the any type of columns, you never design the any type of slabs. Then these papers are very important while you analyzing a structure. And if you talk about the competition, then more than 30% questions out of 100 are directly asked from the MOS, DSS, RCC and TOS. That is mechanics of a structure, that is design of steel structure, that is reinforced cement concrete structure, that is also called DCS, design of concrete structure, and that is theory of structures. Then these 4 papers are very important. So अगर आप अपनी कैरियर को बनाना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड्स में, तो आपके स्ट्रक्चर के पेपर काफ़ी मजबूत होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम और भी जो पेपर्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और पेपर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे इंपॉर्टेंट्स है। अगर आपका ये पर्टिकुलर 4 पेपर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छा नॉलेज अगर आपको इस चारों पेपर्स के बारे में, देन यू हैव टू मेक द कैरियर इन फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। आप किसी भी, अगर DSS की बात करें तो किसी भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर के फील्ड में आप अपनी कैरियर को बना सकते हैं, या फिर जो भी स्ट्रक्चर उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो दीज पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव, देन ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट, अपार्ट फ्रॉम competitive examination, if you want to make career in the private sectors, then these papers are very important. Okay, so that is another issues, that is another things. So let's start the lecture of steel structure. हमने लास्ट के सीरीज में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को देखा था, 3 या 4 प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था। तो अभी इस लेक्चर्स में हम लोग फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे, और इस लेक्चर्स में हम देखेंगे कि पहले के जो क्वेश्चंस थे वो किस तरीके से अभी से डिफरेंट थे, और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम किसी स्टील स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वेल्डेड कनेक्शन से रिगार्डिंग्स में। तो हमने लास्ट के लेक्चर में स्टूडेंट्स बात किया था कि अगर आपको डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालना है वेल्ड्स का, तो आप क्या करते थे। मैंने बताया था कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालते थे तो एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि आपके क्वेश्चंस में प्लेट्स के जो है
आपके ग्रेड दिए रहेंगे, ग्रेड मीन्स FE 410, मान लो प्लेट के ग्रेड दिए गए हैं, तो आप वहाँ से FU की वैल्यू आप क्या करते थे, ये वैल्यू आप लेते थे, ठीक है। और यहाँ पे प्लेट के ग्रेड दिए रहते थे और आप वहाँ पे ये फार्मूला यूटिलाइज करते थे FWD, यही फार्मूला यूटिलाइज करते थे ना। इसका फार्मूला होता था FU डिवाइड बाई में √3 इंटू 1 बाई गामा MW, है ना। ये हमारा डिज़ाइन स्ट्रेस होता था, ये स्ट्रेस होता था, ओके। अब हम इसको क्या करते थे, अगर हम स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करते तो एरिया मतलब क्या है, लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थिकनेस, ये हम करते थे तो हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकलता था। जैसे कि आपने पहले के क्वेश्चंस में आपने और लोगों ने किया होगा और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड कराए हैं। अब मान लो कि अगर डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में अगर आपके स्ट्रेस दे दिए गए हैं, मान लो प्लेट के ग्रेड नहीं दिए गए हैं, ध्यान से सुनना, मान लो प्लेट के ग्रेड ये क्वेश्चंस में नहीं दिए गए हैं, ग्रेड ऑफ प्लेट्स नहीं दिए गए हैं, डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में अगर आपको स्ट्रेस दे दिए गए हैं, मतलब इसकी वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट दे दी गई है क्वेश्चंस में, अगर एग्जामिनेशंस में आपकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई है, तो आपको फिर इस वैल्यू को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इज़न्ट इट। अगर डायरेक्टली आपको स्ट्रेस दे दिए गए हैं क्वेश्चंस में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लेंथ ऑफ वेल्ड और थिकनेस ऑफ प्लेट से मल्टीप्लाई कर देना है उस स्ट्रेस को, तो हमारा क्या हो जाएगा, उस प्लेट का स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। सो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो आपके एग्जामिनेशन में प्लेट का ग्रेड दिया जा सकता है, ठीक है, प्लेट का क्या दिया जा सकता है, ग्रेड दिया जा सकता है, और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा उसका डिज़ाइन स्ट्रेंथ। या तो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट स्ट्रेस दे दिए रहेंगे, तो स्ट्रेस दिए रहेंगे तो डायरेक्टली आपको अगर डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, वहाँ पे स्ट्रेस को डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी ईजी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर डायरेक्टली स्ट्रेस दे दिए गए हैं तो बहुत ही ईजी हो गया, तब तो हमको डायरेक्टली लेंथ ऑफ वेल्ड और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमें ग्रेड दे दिए गए हैं प्लेट्स के, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ग्रेड दिया जाता है प्लेट्स का, डायरेक्टली वहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, क्योंकि अप टू योर लेवल यहाँ पे आपके एग्जामिनेशंस में मैंने देखा है क्वेश्चंस को SBT में डायरेक्टली स्ट्रेस दिया रहता है, ओके। तो मैंने सोचा कि आपके इस बेसिस पे क्वेश्चन करा दूँ, बिकॉज ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो ग्रेड ऑफ प्लेट दिया गया है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे ग्रेड ऑफ प्लेट दिए रहते हैं, ओके, और उसके बाद हमको निकालना पड़ता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली स्ट्रेस दिए रहते हैं, मतलब आपको वहाँ पे कोई भी डिज़ाइन स्ट्रेस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको दिया रहता है स्ट्रेस और उसको मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ ऑफ वेल्ड और थिकनेस से, तो आपका वहाँ पे स्ट्रेंथ निकल जाता है, ओके। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि 410 प्लेट का ग्रेड है तो उसको किस तरीके से हम निकालते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट के बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से बनाया था, ओके। तो आपको ये करना है, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ें कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो कि हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेंगी। अगर आपको डायरेक्ट स्ट्रेस दे दिया गया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये वाला फार्मूला अप्लाई करने का, लेकिन अगर आपको ग्रेड दिया गया है तो फिर से आपको ये फार्मूला अप्लाई करके FU बाई √3 इंटू 1 बाई गामा M, ओके, इंटू गामा MW इंटू व्हाट, थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू लेंथ ऑफ प्लेट करके ये फार्मूला सबको निकालना पड़ेगा। अगर ग्रेड दिया गया है प्लेट का, अगर डायरेक्टली स्ट्रेस दे दिया गया तो आप लेंथ ऑफ प्लेट इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कीजिए और वो निकाल लीजिए, ओके। सो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, सो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ओके। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 8 mm फिलेट वेल्ड यूज्ड टू कनेक्ट अ टाई बार ऑफ 80 mm बाई 10 mm एज शोन इन फिगर्स। यानी कि 8 mm फिलेट वेल्ड का यूज़ किया जा रहा है कनेक्ट करने के लिए, टाई बार है, टाई बार 80 mm बाई 10 mm का है जिसको कनेक्ट करना है, और 8 mm फिलेट वेल्ड का यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, डायरेक्टली यहाँ पे PQ की वैल्यू 108 न्यूटन पर mm² दी गई है, यानी कि आपकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है डायरेक्ट क्वेश्चन में दी गई है 108 न्यूटन पर mm²। यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे ग्रेड ऑफ प्लेट नहीं दिया गया है, तो ग्रेड ऑफ प्लेट नहीं दिया गया है तो ये वैल्यू दिया रहेगा, मतलब दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, या तो ग्रेड ऑफ प्लेट दे दिया गया रहेगा, तो ग्रेड ऑफ प्लेट दिया रहेगा तो फिर आपको FWD बराबर FU बाई √3 इंटू 1 बाई गामा MW इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थिकनेस से निकालना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टली स्ट्रेस दे दिया गया है तो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना। तो ये सारे क्वेश्चंस में इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही आपका 80 बाई 10 mm का ये है जो फिगर्स है, आप देख रहे हैं टाइम मेंबर्स दिए गए हैं ये वाले, और आपके फिगर्स में ये भी दिए गए हैं कि जो वेल्ड्स है 8 mm थिकनेस का 8 mm थिकनेस है, और वेल्ड्स की जो डायमेंशंस इस तरीके से दी गई हैं, ओके। ये देख रहे हैं ना, देखो 100 mm ऊपर में है टॉप में, 100 mm बॉटम में, और ये 80 mm है, ठीक है, ये वाला 80 mm है। अब आपको निकालना क्या है, स्ट्रेंथ निकालना है, तो इट्स वेरी इजी कि स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग स्ट्रेस पता है और लेंथ ऑफ वेल्ड अगर थिकनेस पता चल जाए तो हम आसानी से स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ वेल्ड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 100 mm ऊपर में है, 100 mm नीचे में है, क्या है 100 mm ऊपर में है,
100 mm ऊपर में है, 100 mm नीचे में है और 80 mm ये है। तो टोटल को आप जोड़ देंगे तो लेंथ ऑफ वेल्ड निकल जाएगा, यानी 100 ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला दूसरा पार्ट 100 और ये वाला 80, यानी 100 + 100 + 80, यानी 280 mm क्या आ जाएगा हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद से हमारा क्या होगा, थिकनेस दिया गया है 8 mm और स्ट्रेस भी दिया गया है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वहाँ के स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। ओके, सो यही हमारा क्राइटेरिया था इस क्वेश्चन का। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड L = 100 + 80 + 100 280 mm। थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू जो होती है ये कितनी होती है, मैंने बताया था आपको कोडल प्रोविजंस में 0.8 टाइम्स ऑफ 0.7 टाइम्स ऑफ S, यानी कि तो आप 0.7 टाइम्स और इसको क्या कर दिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 5.6 mm, यानी थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 5.6 mm हो जाएगी। ओके, थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू 5.6 mm इस फॉर्मूला से। अब देखिए स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यही वैल्यू है, ये क्या है स्ट्रेस है और इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू व्हाट थिकनेस ऑफ प्लेट्स। तो PQ इंटू L इंटू T, जहाँ पे PQ क्या है स्ट्रेस है, याद रखिएगा स्ट्रेस है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोई नहीं लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना लेना है, तो आप नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि आपको सॉप वेल्ड का यूज़ किया जा रहा है या फील्ड वेल्ड का यूज़ किया जा रहा है, कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चंस में, तो आप एज इट इज़ जो भी फॉर्मूला वहाँ पे लगा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि सॉप वेल्ड का यूज़ किया जा रहा है, तब आपको यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। देखिए हर चीज़ को मैं बता नहीं, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जितना माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ हो सक रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, तो ये आपका नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मेरा ही तक है। आपको अगर अपने इस क्वेश्चन को बनाना है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू learn steel structure, then definitely you want to practice more and more different types of problems. After that you are able to learn the steel structure, and otherwise it's very difficult to learn the steel structures. Okay, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस किए स्टील स्ट्रक्चर और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, इट्स कांट पॉसिबल्स। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ लेक्चर को देख ले रहे हैं और सो जा रहे हैं, तो ये आप नहीं सीख पाएंगे। तो आप भूल जाइए इस स्ट्रक्चर्स को, पेपर को सीखना। इसके लिए बस आप वही सीख सकते हैं जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, बस यही सीख सकते हैं। अगर सो करके सीखना है, वो भी बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। उसके लिए अगर डिटेल्स में एनालिसिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। सो अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेंथ निकालने के लिए PQ इंटू L इंटू T किए हैं, तो सिंपली यहाँ पे 108 जो हमारा था स्ट्रेंथ की वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू दी गई थी, और यहाँ पे ये 280 mm लेंथ ऑफ वेल्ड था और थिकनेस 5.6 mm। मल्टीप्लाई कीजिएगा 169,344 न्यूटन्स, यानी 169.34 किलो न्यूटन्स। ये हमारा आंसर है गया। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, कितना आसान है ना। सिर्फ स्ट्रेस दिया गया, लेंथ इंटू वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। अब हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ना। देखो चीज़ें अगर आपको सीखनी है, अच्छे से सीखना है, कॉन्सेप्ट जानना है, डेप्थ एनालिसिस करना है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं बहुत इजी सी चीज़ें बता दूंगा कि स्ट्रेस इंटू लेंथ इंटू थिकनेस बराबर हो गया स्ट्रेंथ, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आसान चीज़ें हैं और आसान चीज़ें समझ में आ जा रही हैं, है ना। लेकिन जैसे डेप्थ एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मैंने प्लेट ऑफ ग्रेड पे बताया था, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ FE 410 प्लेट्स है और कैसे FWD इक्वल टू FU/√3 इंटू गामा 1/गामा MW, ये सब कैसे कर दे रहे हैं। तो देखो चीज़ें जो समझने वाली हैं उसको समझना भी पड़ेगा ना। जो चीज़ें एक्चुअली में क्या है कि जो कोडल प्रोविजंस है वो सबको नहीं समझ में आता है, तो वहाँ तक हम पहुँचते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, कम्पिटिटिव के लिए भी पढ़ा रहा हूँ और आपके सेमेस्टर के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पे। डिजाइन ए सुटेबल फिलेट वेल्ड टू कनेक्ट अ टाई बार 80 mm by 8 mm at its end. Use a gusset plate 8 mm thick. Take the permissible stress in tension to be 150 megapascals. ओके, सो सुटेबल फिलेट वेल्ड का डिज़ाइन करना है। टाई बार दिया हुआ है। टाई बार यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, टाई बार 80 by 8 mm at its end. यूज़ अ गसेट प्लेट, गसेट प्लेट का यूज़ किया जाए, इसका थिकनेस 8 mm है। टेक परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, याद रखिएगा, टेक परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन टू बी 150 मेगापास्कल्स। टेंशन में जो परमिसिबल स्ट्रेस दी गई हैं 150 मेगापास्कल्स है।
ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ें नहीं दी गई हैं। क्या नहीं दी गई हैं कि जो स्ट्रेस है वेल्ड्स में कितना आ रहा है, तो नहीं दी गई है। तो यहाँ पे मान लो आप 108 मेगापास्कल जनरल हम लोग मान करके चलते हैं। सो वहाँ पे आप स्ट्रेस इन वेल्ड 108 मेगापास्कल लेकर के चल सकते हो। चूँकि ना ही यहाँ पे आपको ग्रेड ऑफ प्लेट दिया गया है तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, ना ही आपकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिल रही है। तो जब नहीं मिल रही है कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से, तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है आप एज्यूम कर सकते हो। तो 108 मेगापास्कल आप स्ट्रेस ऑफ प्लेट्स ले सकते हो, स्ट्रेस ऑफ वेल्ड ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, द जॉइंट इज टू बी डिजाइन फॉर फुल स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार। ठीक है, जब डिजाइन कर रहे हैं हम लोग जॉइंट का, फुल स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार के लिए कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार निकालेंगे। टाई बार का स्ट्रेंथ, नॉट्स वेल्ड टाई बार का। ओके, उसी तरीके से तो यहाँ पे देखो सिग्मा 80 इंटू बी इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा 80 मतलब एक्सेल टेंशन में कितना स्ट्रेंथ है, तो कितना है 50 मेगापास्कल, सॉरी 150 मेगापास्कल, और 1 मेगापास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 1 मेगापास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, सो 150 और बी की वैल्यू दी गई है प्लेट की 80 एमएम और थिकनेस की वैल्यू 8 एमएम। ओके, इन सारे वैल्यूज को रखेंगे तो ये आ जाएगा 96000 न्यूटन। इसको हम लोग कहेंगे 96 किलो न्यूटन। ओके, क्या कहेंगे, 96 किलो न्यूटन। ओके, अब देखो एक चीज़ मैंने बताया था, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड्स कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड्स डिसाइड करने का क्राइटेरिया जो IS कोड 800/2007 ने दिया है, ये है कि आप जितना थिकनेस ऑफ प्लेट है उसमें से 1.5 mm घटा दें आप, यानी माइनस कर दें, तो जितना आएगा वो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड्स होगा। मतलब उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800/2007 कह रहा है। ओके, सो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इक्वल टू 8 - 1.5 mm यानी 6.5 mm। ओके, अब ये मैक्सिमम साइज हो गया। और आपको पता है मिनिमम साइज जो होता है वेल्ड्स का वो होता है क्या, 3 mm होता है। मतलब 3 mm से कम हम नहीं ले सकते किसी भी केसेस में। अगर उसे कम भी आ रहा है तो हम 3 mm एज्यूम करेंगे, बिकॉज दैट इज मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। More than 2 or 3 times that type of question asked in SBT, what is the minimum size of weld? So minimum size of weld should be 3 mm. Okay, and maximum size depends upon the thickness of the plates. Okay, so thickness of plate अगर 8 है तो 8 - 1.5 6.5 mm, यानी कि आप जो वैल्यू है मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 6.5 है, इस बीच में कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। बट हमने एज पर कन्वीनियंट, क्योंकि हम बहुत कम भी नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते, तो एज पर कन्वीनियंट इज यूजिंग 6 mm फिलेट वेल्ड्स, 6 mm फिलेट वेल्ड्स का हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। ओके, अब स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, अब वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालेंगे। सो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वेल्ड का स्ट्रेस पता होना चाहिए। सो वेल्ड का स्ट्रेस है PQ इंटू L इंटू T, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वेल्ड्स। सो 108 इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड। अब लेंथ ऑफ वेल्ड, और देखो यहाँ पे देखो हम यहाँ पर mm लेंथ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पर mm। तो लेंथ की जगह पे हमने 1 रख लिया। ठीक है, याद रखिएगा, पर mm निकाल रहे हैं तो लेंथ की जगह पे हमने 1 रख लिया। ओके, और T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट्स, सॉरी थ्रॉट थिकनेस। तो ये क्या होता है 0.7 टाइम्स ऑफ व्हाट, साइज ऑफ वेल्ड्स। तो 0.7 और साइज ऑफ वेल्ड कितना है 6 mm। ओके, यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया 453.6 न्यूटन। अब ये आ रहा है 453.6 न्यूटन, यानी 453.6 न्यूटन। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे निकालनी थी, तो हमने निकाला इसके अकॉर्डिंग। अब देखो, अब लेंथ ऑफ वेल्ड कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार, जितना टाई बार का स्ट्रेंथ आया है डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 mm के लिए निकाला था। ठीक है, यही आया था हमारा। तो स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, तो ये आया था 96000 न्यूटन, और डिवाइड कर देंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड 453.6 न्यूटन। ओके, ये न्यूटन आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगे 211.64 mm, और ये आया है 211.64 mm। तो हम लोग लेंथ ऑफ वेल्ड जो है लगभग नियर अबाउट जो है हमारा आया है 211.64 mm। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे नियर अबाउट थोड़ा सा बढ़ा करके ले लेते हैं, नियर अबाउट, है ना। तो 211 के आसपास है, तो आप 220 के क्रॉस में ले सकते हो। तो 220 हम लोगों ने ले लिया, मतलब उससे कम नहीं लेंगे हम। ऐसा नहीं कि 211 है तो 210 ले लेंगे, ऐसा नहीं है। कम होगा तो हमारा फेलियर का चांसेस है, अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा। सो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम ही लेते हैं हम लोग उसके क्रॉस में। ठीक है, अब इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या हमने जो डिज़ाइन किया है, क्या ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमारा इंडियन स्पेसिफिकेशन कोड है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट्स है। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा ऊपर में आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए,
लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ वेल्ड्स, देखिए लेंथ ऑफ ईच साइड 220 mm आया ना, कितना आया 220 mm, तो टोटल लेंथ आया, तो 220 में से क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड में ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे 110 mm 110 mm नीचे है ना, 220 बाई हाफ कर देंगे तो क्या आ गया 110, देखिए 110, और 110 जो है हमेशा ये वाला इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए 80 से, ठीक है, 80 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 110 जो है हमारा क्या होना चाहिए 80 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ट्रांसवर्स डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कितना आया है 110, जो कि 80 से ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब हमारा जो लेंथ ऑफ वेल्डिंग है वो सेटिस्फाइड कर रहा है हमारे कंडीशंस को, यानी कि याद रखिएगा लेंथ जो है हमेशा डी से होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कौन सा लेंथ, ऊपर वाला लेंथ, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ है ये हमेशा डी से बड़ा होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस में हमारा जो दिया यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड्स जो है, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड जो है 220 mm है, और हमारा जो है लेंथ ऑफ वेल्ड जो आया है 220 आया है, 220 को आधा कर दिया तो 110 आ गया, जो कि 80 से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिकेशंस। ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन साइड वेल्ड्स, है ना, मतलब साइड जो वेल्ड्स है उसका ट्रांसवर्स डिस्टेंस जो होना चाहिए। अब देखिए टाई बार है कितना है 80 mm का है, तो ये जो 80 mm है, ये जो 80 mm है ये 80 mm कहने का मतलब है ये लेस होना चाहिए 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट, है ना। अब 16 टाइम थिकनेस ऑफ प्लेट कहने का क्या मतलब है, 16 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट यानी 8, 16 ठीक कितना होगा 128, 128, ठीक है। अब देखिए जो 80 mm है वो क्या है 128 से क्या है कम है ना, यानी कि 80 mm इज लेस देन 16 टाइम्स ऑफ टी, 16 टाइम्स ऑफ टी कहने का मतलब है थिकनेस ऑफ प्लेट यानी 128, तो 80 128 से कम है, सो हमारा ये भी क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब है हमने जो वेल्डिंग किया है वो हमारे एज पर आईएस कोड प्रोविजन सेटिस्फाई कर रहा है, हम इतना लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइड कर देंगे, हमारा सेफ रहेगा, कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होगा इसमें, है ना। तो आप सॉल्व करने के बाद सेफ्टी क्राइटेरिया को एज पर आईएस कोड चेक करना सही है, अगर नहीं आप इसको करते तो हो सकता है कि आप उसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो आपको ये चीज़ें इस टाइप से करना है, क्वेश्चंस अगर आता है इसको आपको सॉल्व करना है इस तरीके से, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड लैप जॉइंट बिटवीन टू प्लेट ऑफ साइज 150 mm बाई 8 mm एंड 150 mm बाई 12 mm। अब देखो लैप जॉइंट आपको डिजाइन करना है फिलेट वेल्ड्स के लिए, तो 150 mm बाई 8 mm का एक प्लेट है 150 mm प्लेट इन टेंशन में जो परमिसिबल स्ट्रेसेस दी गई हैं ये 150 मेगापास्कल है और वेल्ड्स का दिया गया 100 मेगापास्कल रिस्पेक्टिवली, मतलब जो प्लेट है उसका 150 मेगापास्कल दी गई है परमिसिबल स्ट्रेसेस, और जो वेल्ड्स है जिसको हम दो प्लेट को वेल्ड करेंगे ना तो वेल्डिंग मटेरियल्स भी होगा, तो वेल्डिंग मटेरियल्स का जो स्ट्रेंथ है उसका दिया गया स्ट्रेस 108 मेगापास्कल्स। अब आपको डिजाइन करना है फिलेट वेल्ड्स का, ठीक है। तो आप देखिए यही है हमारा लैपिंग किया गया है दो प्लेट्स को, ए प्लेट ये वाला है 150 बाई 8 mm वाला, और बी प्लेट है 150 बाई 12 mm वाला, दोनों को चढ़ा दिया गया है, चढ़ा करके लैप किया गया है। और देखो यहाँ पे लैपिंग किया गया है, तो इसी में पूछा जा रहा है कि फिलेट वेल्ड का क्या करें आप डिज़ाइन करें, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए थिकनेस ऑफ प्लेट्स दी गई हैं यहाँ पे 12 mm और यहाँ पे 8 mm, ठीक है। अब इसको हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। तो सबसे पहले जो प्लेट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। द वेल्ड विल बी डिजाइन टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ ऑफ द थिनर प्लेट्स, याद रखिएगा फुल स्ट्रेंथ ऑफ द थिनर प्लेट्स, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट ऑफ साइज 150 mm बाई 8 mm, ओके। अब जो वेल्ड्स का डिज़ाइन करेंगे हम लोग जो स्ट्रेंथ है थिनर प्लेट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा जब डिज़ाइन करते हैं थिनर प्लेट्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ओके। तो सिग्मा 80, तो सिग्मा 80 की वैल्यू 150 दी गई है ना, एक्सेल टेंशन में बी की वैल्यू 150 और थिकनेस ऑफ प्लेट 8 mm। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 180 इंटू 000 न्यूटन यानी 180 किलो न्यूटन ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। क्यों थिनर प्लेट के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि मान लो कि हम थिनर प्लेट के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा हम स्ट्रेस को वहाँ पे, इससे ज़्यादा हम लोड को वहाँ पे कैरी नहीं करने देंगे, मतलब अगर थिनर प्लेट से ज़्यादा ही कैरी नहीं करने देंगे हम लोग तो क्या होगा हमारा जो प्लेट है वो सेफ रहेगा, क्योंकि हम लोग थिनर प्लेट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का अगर प्लेट ले रहे हैं, उससे ज़्यादा थिकनेस का प्लेट ले रहे हैं तो हमारा ऑलरेडी सेफ है, ठीक है। इसलिए हमेशा हम थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के लिए डिज़ाइन करते हैं कि मान लो एक प्लेट का थिकनेस 12 mm है, एक प्लेट का 8 mm है, तो हम 8 mm वाले के लिए डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसके
क्रॉस सेक्शन के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा के लिए अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करोगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में उससे ज़्यादा भी लोड्स आ जाए, है ना। तो हम थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के लिए अगर कर रहे हैं डिज़ाइन तो हम उतना ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब उससे ज़्यादा हम लोड नहीं आने देंगे। तो उससे ज़्यादा हम लोड नहीं आने देंगे तो मान लो कि 12 mm प्लेट का करेंगे तो उससे ज़्यादा उसका लोड टेकिंग कैपेसिटी होगा 12 mm प्लेट का, तो उतना तो पहुँचेगा ही नहीं, है ना। इसलिए हम लोग थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करते हैं। ओके, अब देखो बोथ प्लेट विल इलोंगेट अंडर द लोड एंड देयरफॉर स्ट्रेसेस विल बी इक्वल इन बोथ प्लेट्स। ठीक है, अब जो दोनों प्लेट है, क्योंकि दो टाइप का प्लेट है, 150/12 का, 150/8 का, तो स्ट्रेसेस जो होगा दोनों में इक्वल होगा। सो इक्वल स्ट्रेस इन बोथ प्लेट मीन्स दैट द थिकर प्लेट विल कैरी मोर फोर्सेस। जाहिर सी बात है कि जो थिकर प्लेट्स है उसके अंदर में फोर्स टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया आपको। अब स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। हैंस प्रोवाइड द वेल्ड साइज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। लेट एस ए एंड एस बी बी द साइज ऑफ द वेल्ड। एस ए क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है ए का, और बी है बी का, ठीक है। अब एस ए बाई एस बी अगर हम बात करें साइज ऑफ वेल्ड का, तो देखो एस ए बाई एस बी हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका थिकनेस ऑफ प्लेट कितना दिया हुआ है 12 mm, अब बाई 8 mm कर सकते हैं यहाँ पे। तो एस ए बाई एस बी कहने का मतलब है साइज ऑफ जो आपका ये है थिकनेस ऑफ प्लेट्स जो है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो एस ए बाई एस बी बराबर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 12/8, यानी एस ए इक्वल टू क्या होगा 1.5 टाइम्स ऑफ एस बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 टाइम्स ऑफ एस बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड्स आपको निकालना है, तो पहले 108 इंटू 150 इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेस का वैल्यू दिया गया है, ये स्ट्रेस का वैल्यू दिया गया है ना 108 मेगापास्कल्स, और ये प्लेट की साइज दी गई है 150, ठीक है। ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, और आपका 0.7 टाइम्स ऑफ एस ए हो गया ये वाला, ठीक है, थ्रॉट थिकनेस का वैल्यू। फिर उसी तरीके से यहाँ पे हो गया 108 और यहाँ पे 1 हो गया 150 और 0.7 टाइम्स ऑफ ये, क्योंकि ये थ्रॉट थिकनेस है तो 0.7 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस बी हो जाएगा, और यहाँ पे एस ए था तो एस ए हो गया। अब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एस बी तो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे जो भी होगा इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में आपका एस ए और एस बी का टर्म आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेन समझना है यहाँ पे वैल्यूज को कैसे रखते हैं इस जगह पे, है ना। तो इस जगह पे 108 तो आपका स्ट्रेस दिया गया है, प्लेट का जो लेंथ दिया गया है 150 दिया गया है, उसके बाद में थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई तो 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड होता है, तो 0.7 टाइम्स ऑफ, और एस ए की वैल्यू ले लिए हम लोग क्योंकि ऐसे हमको पता नहीं है, क्योंकि यही तो निकालना है हमको एस ए की वैल्यू। उस तरीके से हम बी प्लेट के लिए तो 108 हो गया स्ट्रेस उसका, और 150 उसका तो कॉमन था लेंथ, और यहाँ पे 0.7 टाइम्स हम क्या हो गया एस बी, यानी कि 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड ऑफ बी। अब इसको करेंगे कैलकुलेट तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझ में आई गया, एस ए बाई एस बी इक्वल टू हो गया एस ए इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ एस बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आया है 11,340 एस ए प्लस एस बी। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ थिनर प्लेट के बराबर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है स्ट्रेंथ ऑफ थिनर प्लेट तो 180,000, ओके। क्यों लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ थिनर प्लेट, मैंने आपको बार बार बताया कि अगर हम लोग थिनर प्लेट के स्ट्रेंथ के बराबर अगर हम डिज़ाइन कर देते हैं, मतलब उतना ही लोड हम अगर परमिट करते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर थिकनेस का प्लेट हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं करेगा, ओके। इसलिए हम लोग थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के बराबर हम लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मान लो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के लिए आप डिज़ाइन किए 180 किलो न्यूटन लोड के लिए, ठीक है, ये 8 mm का प्लेट के लिए किए थे आप, ठीक है। अब मान लो कि इसमें 12 mm का प्लेट भी है, 14 mm का भी है, 14 mm का भी है, मतलब जो भी इस प्लेट का थिकनेस दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि 12 mm का प्लेट का लोड टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, 14 mm का उससे ज़्यादा होगा। अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ 180 किलो न्यूटन के लिए, ठीक है। किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 180 किलो न्यूटन के लिए। तो 180 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड तो हमारे स्ट्रक्चर पे परमिट ही नहीं कर रहा, तो अब 12 का यूज़ करोगे तो ऑलरेडी सेफ है, 14 का भी सेफ है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का यूज़ करेंगे हम लोग। और मान लो कि 8 mm का आपने बनाया, अब मान लो कि 6 mm का अचानक यूज़ कर लो 6 mm का, तो आपने डिज़ाइन किया सिर्फ 8 mm के लिए, और 6 mm का आपने डिज़ाइन नहीं किया क्योंकि 6 mm उससे भी छोटा था, तो आपको डिज़ाइन करना चाहिए था 6 mm के लिए, जबकि आपने किया 8 mm के लिए। तो 180 जब आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन किया है, तो 6 mm प्लेट को आप जब लगाओगे तो ऑलरेडी फेल कर जाएगा, क्योंकि 80 से क्या होगा, उससे कम स्ट्रेंथ आएगा 6 पे। तो हम थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के लिए डिज़ाइन करेंगे प्लेट्स का, ये चीज़ आप समझना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिया गया है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो एस ए प्लस एस बी की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 15.873 आ जाएंगी, ठीक है।
यानी स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड को आपको इक्वेट कर देना है स्ट्रेंथ ऑफ थिनर प्लेट्स के बराबर में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी SA प्लस SB इक्वल टू ये वैल्यू 15.873, ओके। सो देखो यहाँ पे 1.5 टाइम्स ऑफ SB, ये ऊपर में आया था वैल्यू हमारा SA प्लस SB इक्वल टू ये वैल्यू आया, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से आया ये वैल्यू। देखो SA प्लस SB इक्वल टू ये आया ना यहाँ पे। अब देखो SA की वैल्यू जो हमारी ऊपर में सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो ये वैल्यू आया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो हाँ, यहाँ पे SA की वैल्यू कितनी आई है 1.5 टाइम्स ऑफ SB, है ना। तो SA की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो SA की वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1.5 टाइम्स ऑफ SB प्लस SB 15.873, तो SB इक्वल टू 6.535 mm, तो इसको नियर अबाउट हम 6.5 mm लेंगे, ठीक है। और SC इक्वल टू क्या है 1.5 टाइम्स ऑफ SB, तो SB की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी 9.52 यानी 9.5 mm, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यही हमको निकालना था साइज ऑफ प्लेट, यानी कि हमको निकालना था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग ने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को समझा होगा और अच्छे से इसको समझा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ग्रेड ऑफ प्लेट दिया रहेगा तो आपको जब मैंने पहले फॉर्मूला बताया था उस तरीके से निकालिए, या डायरेक्टली स्ट्रेस दिया रहेगा तो आपको इस तरीके से निकालना है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, दोनों तरीके का फॉर्मूला को लगाकर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ग्रेड दिया है FE 410 तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है FWD इज इक्वल टू FU बाई √3 इंटू 1 बाई गामा MW इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थिकनेस, स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है। ये चीज़ यूज़ करना है। अगर मान लो कि आपको दिया गया है सिर्फ स्ट्रेस से दिया गया डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो इट्स वेरी इजी, स्ट्रेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थिकनेस, जैसा कि सारे क्वेश्चन में अभी के जो सीरीज थे उसमें दिए गए थे, तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। सो दोनों टाइप के फॉर्मूलाज, दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपसे छूटे एग्जामिनेशंस में, और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आप पहले से ना पढ़े हो, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग सो मच कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।